everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today. That is chapter number 7 of class 7, which is about introduction to Photoshop. Okay. See, first of all, we have the topic what is Photoshop. Photoshop is a popular image changing software package. It is widely used by photographers for photo editing, that is fixing color, reducing noise, adding effects, fixing brightness or contrast, and by graphic designers and web designers to create and change images for web pages. So student, what is a Photoshop? Photoshop एक popular image changing software package है जिसको widely photographers के थ्रू यूज किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए। उसमें बेसिक फोटो फॉर्मेटिंग करी जाती है बाय ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब डिजाइनर्स भी इसका यूज किया जाता है टू क्रिएट एंड चेंज इमेजेस फॉर देयर web pages. So first of all, we have to learn that how are we going to start the Photoshop. So for that, they have given you the step, and the very first step is click on Start button. सबसे पहले Start button पे click करना है, then select all programs. After that, you have to select Adobe Master Collection CS6, and then वहाँ पे Adobe Photoshop CS6 को select करके आपका Adobe Photoshop window will appear. Now Photoshop Workspace. So यहाँ पे आप various combination of tools, menu commands, palette based features का use कर सकते हैं to open and अपनी digital images को Photoshop पे edit करने के लिए. Okay, they have given you this is the Photoshop window, and this is the option bar, this is menu bar, toolbox, and these are the panels. Okay. So now we have to discuss all these elements or the components of this window. First of all, we have menu bar. Menu bar के अंदर वो सारे menus display करते हैं जो जिसके अंदर Photoshop's commands होते हैं. Then option bar आपका क्या करता है, एक ऐसा display है जो आप control करेगा कि कैसे आप tool box के अंदर selected tool को customize करेंगे. Then we have toolbox. Toolbox आपके variety of icons को display करता है जिसमें हर एक icon आपके image editing tool को represent करेगा. आपको simply click and drag करना है अपने image के अंदर most of these tools को apply करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव इमेज विंडो. इमेज विंडो के अंदर हर एक इमेज है जो कि आप फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं. देन वी हैव पैनल. पैनल आपकी स्मॉल विंडोज होती हैं जो कि आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है कॉमन कमांड्स एंड रिसोर्सेज के लिए. आपको टैब्स एंड आइकन्स पे क्लिक करना होता है टू डिस्प्ले एंड हाइड दीज पैनल्स. नेक्स्ट वी हैव द फोटोशॉप टूल बॉक्स. तो टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेपरेट टूल्स होते हैं. आपको सिंपली टूल पे क्लिक करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए एंड टू वर्क इट फॉर ऑन योर image. So if you leave your mouse cursor over the tool, अगर आप अपने माउस कर्सर को उस टूल के ऊपर ही छोड़ दोगे, so Adobe Photoshop क्या करेगा, उस टूल के नेम को इंडिकेट करेगा एंड कीबोर्ड शॉर्टकट भी रिप्रेजेंट करेगा टू एक्सेस दैट टूल. सो कुछ टूल्स है जो कि आपके ग्रुप ऑफ टूल्स में स्टैक्ड होते हैं एंड एक स्मॉल ब्लैक एरो जो है इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टूल इंडिकेट करता है एडिशनल टूल्स को भी जो कि उनके पीछे स्टैक्ड होते हैं. ठीक है. सो इस स्टैक के अंदर किसी भी टूल को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली क्लिक एंड होल्ड करना है अपने माउस बटन को ऑन द अपर मोस्ट टूल फॉर अ सेकेंड. ओके. सी Adobe Photoshop टूल के अंदर ये कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं विच दे हैव गिवन यू. Move tool, mark selection tool, lasso tool, quick selection. So all these they have given you. Path selection, zoom tool, exchange color, history, eraser background. Okay, they have given you the basic different tools in the Adobe Photoshop. Now creating a new image window. कैसे एक new image window को create करना है? First of all, आपको एक Photoshop project को start करना के लिए क्या पहले एक blank page create करना पड़ता है. So for that, आप simply पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू आपका ओपन होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू. उसके बाद एक न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. देन आप अपने न्यू इमेज के लिए एक न्यू नेम टाइप करेंगे एंड देन टाइप इन डिजायर्ड डायमेंशंस एंड रेजोल्यूशन. जब भी आपको डिजायर्ड डायमेंशंस चाहिए, इस पिक्चर के रेजोल्यूशंस चाहिए, यू हैव टू टाइप ओवर देयर. Then you have to click on the down arrow button to select the background contents of the new image. तो जो down arrow button है आपको वहाँ पे क्लिक करना है अपनी न्यू इमेज के बैकग्राउंड एंड कंटेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए. देन फाइनली क्लिक ऑन ओके. सो फोटोशॉप क्या करेगा, एक न्यू इमेज विंडो को क्रिएट कर देगा स्पेसिफाइड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग एंड नेम ऑफ फाइल है दैट विल बी अपीयर्ड इन द टाइटल बार. नाउ अब आप फोटोशॉप टूल्स एंड कमांड्स का यूज कर सकते हैं उस इमेज को क्रिएट करने के लिए विच एवर यू वांट टू. नेक्स्ट इज ओपनिंग एन इमेज. कैसे एक इमेज को ओपन किया जाता है. सो एक एग्जिस्टिंग इमेज फाइल को हम इजीली फोटोशॉप पे ओपन कर सकते हैं. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल, द फाइल मेन्यू विल ओपन. सेकेंड स्टेप में आपको ओपन पे क्लिक करना है, ओपन डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा. देन आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है उस फोल्डर को देखने के लिए जिसके अंदर इमेज है विच यू वांट.
देन हम फाइल में नेम पे क्लिक करेंगे टू ओपन, एक प्रीव्यू जो है उस इमेज का वो डिस्प्ले होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन एंड इमेज जो है वो आपकी फोटोशॉप पे ओपन हो जाएगी। Photoshop opens at the image in a new window like this and the name of file hoga, it will appear in the title bar. Next we have saving a file. So when you save an Adobe Photoshop file, it is by default saved as PSD फाइल। जब भी आप एक Adobe Photoshop फाइल को सेव करते हो वो बाय डिफॉल्ट एज अ PSD फाइल सेव होती है एंड ये नेटिव फाइल फॉर्मेट होता है फोटोशॉप का। सेव एज कमांड के थ्रू आप क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी नियरली 20 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हो अपने इमेज को सेव करने के लिए। सो आप किसी भी एक ऑल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट में अपनी इमेज को सेव कर सकते हो, सच एज TIFF अगर आप इमेज को प्रिंट कर रहे हैं, JPEG अगर आप इमेज को स्क्रीन पे सेंड कर रहे हैं, PNG अगर आप अपनी इमेज को इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं। ओके, सो आप डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सो फॉर सेविंग अ फाइल वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। ओके, देन आपको क्लिक करना है सेव एस पे, या फिर आप सिंपली शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस को भी प्रेस कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट की फ्रॉम योर कीबोर्ड। देन आपको सेलेक्ट करना है कोई भी फाइल फॉर्मेट को विच यू वांट एंड देन क्लिक ऑन सेव। योर फाइल विल बी सेव्ड। Now, next is using Photoshop tools. So let us know the use of some of the Photoshop tools with the help of the following activities. यहाँ पे आपको activity given है, so इसमें आपको क्या कुछ Photoshop tools के uses को हम लोग समझेंगे with the help of this activity. Here we are trying to create a collage by combining independent images of the 7 wonders of the world. आपके world के 7 wonders की images को combine करके we are creating a collage over here. Okay, they have given you have to copy several images into a single image and then creating a collage like this. Okay, chalo. Next we have what using layers. So the concept of layer is very simple to understand. अब ये जो layers का concept है Adobe Photoshop, that is very simple to understand. एक complex drawing जो है आपकी different objects से बनी होती है, and if you want to have all the objects lying together, working on one object might accidentally spoil others and a drawing could become a mess. So now just imagine the complex drawing made up of several layers. अब आपको imagine करना है कि complex जो image होती है वो आपकी different and many types of layers से बनी होती है। Different objects जो drawing के वो आपके different transparent layers पे होते हैं अपने respective positions पे, and जब इन सभी layers को super imposed किया जाता है तो आपको अपनी final drawing मिलती है। So आप किसी भी object पे without the fear of spoiling others वर्क कर सकते हैं। सो वी कैन से कि लेयर्स के साथ हम एक एलिमेंट पे वर्क कर सकते हैं बाकी किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। सो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने जितने भी इमेजेस को कॉपी किया था बैकग्राउंड इमेज में, वो एक्चुअली आपके सेपरेट लेयर्स में चली जाती हैं। सो आप उन्हें चेक कर सकते हैं क्या आपके लेयर्स पैलेट को ओपन करके। सो व्हाट इज द लेयर पैलेट? लेयर पैलेट के अंदर सारी लेयर्स होती हैं, लेयर सेट, लेयर इफेक्ट्स जो आपके एक इमेज में होते हैं। सो आप कोई इसमें क्या कर सकते हैं, मेनी टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग, हाइडिंग, डिस्प्लेइंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स यूजिंग द बटन्स इन द लेयर्स पैलेट। सो लेयर्स पैलेट को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पर आपको सिंपली विंडो मेन्यू को ओपन करना है एंड द लेयर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो लेट अस गेट फेमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर्स पैलेट। सबसे पहले लेयर्स पैलेट के डिफरेंट पार्ट्स को हमें समझना है जो हमें हेल्प करेंगे इमेजेस पे वर्क करने के लिए विच हैव गॉन इनटू द डिफरेंट लेयर्स। ओके, दे हैव शोन यू दिस इज द आई आइकन जो लेयर के फ्रंट में होता है जो कि विजिबल होता है। फिर ब्रश आइकन होता है वो भी फ्रंट में होता है करंटली सिलेक्टेड लेयर के। थंबनेल व्यू जो है इमेज का वो आपके लेयर में होता है। दिस इज ये आपका क्लिक आपको यहाँ पे करना है क्या, एक कमांड मेन्यू को एक्सेस करने के लिए फॉर वर्किंग विद द लेयर। दिस इज वॉट ये लेयर का नेम होता है। दिस इज द एड अ लेयर स्टाइल आइकन। दिस इज फॉर क्रिएट अ न्यू लेयर आइकन एंड दिस इज फॉर डिलीट लेयर आइकन। ओके, चलो नाउ वर्किंग विद लेयर्स इन द लेयर्स पैलेट। अब कैसे लेयर्स पैलेट में लेयर्स के साथ वर्क किया जाता है? सो हम क्या डिफरेंट लेयर्स जो इमेज की उनके साथ वर्क कर सकते हैं जिसमें आपके मल्टीपल लेयर्स होती हैं, किसके थ्रू? लेयर्स पैलेट के थ्रू। सो आप किसी भी एक लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं टू वर्क विद। लेयर को डिलीट किया जा सकता है इफ यू नो लॉन्गर रिक्वायर इट, एंड लेयर्स को आप हाइड भी कर सकते हो अगर आप करंटली उनको अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते हैं, एज वेल एज डू अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ लेयर पैलेट। सो लेट अस लर्न हाउ टू डू इट ऑल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिंग लेयर्स। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर लेयर को के साथ वर्क करना है इन अ मल्टी लेयर इमेज में, सो सबसे पहले आप उसे सेलेक्ट करेंगे लेयर्स पैलेट में से। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू सेलेक्ट अ लेयर? दैट इज ओपन द लेयर पैलेट। सबसे पहले लेयर पैलेट को ओपन करेंगे एंड देन उस लेयर आइकन पे क्लिक करेंगे फिर जिसके साथ भी आप वर्क करना चाहते हैं।
देन योर लेयर विल गेट सेलेक्टेड, वो लेयर आपके सेलेक्ट हो जाएगी एंड उसका जो नेम है वो आपके बार पर आपको अपीयर होगा। एक पेंट ब्रश आइकन आपका अपीयर होगा अगेंस्ट द सिलेक्टेड लेयर इन द लेयर पैलेट, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये जो लेयर है वो करेंटली एक्टिव है। अब आप इजीली रिसाइज, मूव, इरेज, डिलीट कर सकते हो उस लेयर को, दैट इज इमेज को, एज रिक्वायर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट टूल्स। एंड कोई भी चेंजेस जो आप करोगे वो आपके अप्लाई हो जाएंगे सेलेक्टेड लेयर पे एंड बाकी सारी लेयर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू लेयर। कैसे एक न्यू लेयर को ऐड किया जाता है? सो लेयर्स पैलेट का यूज करके हम एक न्यू लेयर को भी ऐड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम गिवन स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। जिसके ऊपर भी आप एक न्यू लेयर को इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू लेयर बटन पे ऑन द लेयर्स पैलेट एंड एक न्यू लेयर जो है वो आपके इंसर्ट हो जाएगी above the selected layer in the image as well as in the layers palette also। अब आपको अगेन एक पेंट ब्रश आइकन जो है वो दिखेगा इन शिफ्टिंग इन फ्रंट ऑफ द न्यू लेयर आइकन ऑल्सो, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये भी आपके करंटली एक्टिव लेयर है। देन वी हैव रीनेमिंग लेयर्स। सो जो आपके न्यूली एडेड लेयर्स है उनमें नेम्स होते हैं लाइक लेयर 1, लेयर 2 एक्सेट्रा, एंड आप इन लेयर्स को रीनेम भी कर सकते हैं उनके नेम को मीनिंगफुल बनाने के लिए। लेट अस लर्न हाउ टू डू इट। सबसे पहले आपको लेयर नेम पर डबल क्लिक करना है, लेयर का नेम आपका सिलेक्ट हो जाएगा एंड कर्सर जो होगा वहाँ पे आपके एडिटिंग के लिए प्रेजेंट होगा। देन आप न्यू नेम एंटर करेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर की को एंड जो लेयर का नेम है वो आपका रीनेम हो जाएगा। देन व्यूइंग एंड हाइडिंग लेयर्स। सो लेयर को व्यू एंड हाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर लेयर के कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं एंड आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है जो बाकी लेयर्स के इमेजेस हैं उनके साथ, सो आप क्या कर सकते हैं बाकी लेयर्स को हाइड कर सकते हैं एंड सिर्फ उसी लेयर को विजिबल कर सकते हैं जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। सो जब आप टास्क को कंप्लीट कर लें फिर आप दोबारा से उन हिडन लेयर्स को विजिबल कर सकते हैं। सो कैसे हम सबसे पहले लेयर को हाइड करेंगे, देन उसको दोबारा से हम व्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द आई आइकन, जो आपके लेयर के फ्रंट में आई आइकन प्रेजेंट होता है आप उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन कौन से लेयर के आइकन पर जिसको भी आपको हाइड करना है। देन आई आइकन आपका डिसअपियर हो जाएगा एंड इट विल इंडिकेट कि वो जो पर्टिकुलर लेयर है दैट हैज बीन हिडन। ठीक है, एंड जो कंटेंट्स है उस लेयर के वो भी आपके हिडन रहेंगे जब तक आप उस लेयर को दोबारा से विजिबल नहीं बनाते हो। एंड एक लेयर को विजिबल करने के लिए दोबारा से आपको क्लिक करना है उस हिडन लेयर के फ्रंट में जो एम्प्टी बॉक्स होगा ओवर देयर। नेक्स्ट वी हैव लॉकिंग ऑफ लेयर्स। सो हम अपने लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं उनके कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 4 डिफरेंट लॉक आइकन्स हैं जो हमारे लेयर्स पैलेट के टॉप पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं अपने लेयर्स को लॉक करने के लिए इन 4 डिफरेंट वेज। सो फॉलो द स्टेप्स गिवन टू लॉक अ लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लेयर। आप लेयर को सिलेक्ट करोगे जिसे को भी आप लॉक करना चाहते हैं फ्रॉम द लेयर्स पैलेट। ओके, देन जब आपके जितने भी कंटेंट्स है लेयर के वो लॉक हो जाएंगे, एक लॉक आइकन आपका डिस्प्ले होगा टू द राइट ऑफ द लेयर नेम। अब आपके जितने भी इस पर्टिकुलर लेयर के प्रॉपर्टीज है वो लॉक्ड है। नाइदर यू कैन चेंज इट्स पोजीशन इन द लेयर पैलेट नॉट कैन इट्स कंटेंट्स बी चेंज। अब क्योंकि वो लेयर पर्टिकुलर लेयर आपकी लॉक हो चुकी है तो ना तो आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं लेयर पैलेट में और ना ही उसके कंटेंट्स को चेंज किया जा सकता है। ओके, चलो। So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.